Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss one important question based on the CSV files. आपके जो एग्जाम में CSV files की questions हैं, उनको कैसे attempt करना है, that we will discuss. So let's start. In this video, we will discuss this question. You have to write a program to write and read the data from a CSV file consisting item number, item name, quantity and price. Means you have to create a Python script in which you have to write the data to a CSV file as well as you have to read the data from a CSV file. उस CSV file का name नहीं given है, तो it's your choice. But if it is given in the question, तो then you have to take that file name. और जो आपकी CSV files होगी, that consists the item name, number, item name, quantity and price. ये details आपने उसमें write करनी है. After that, you have to create a function to search for a particular item using item code. कि आपको किसी item code की लेकर के search करना है, उसका record display कराना है. Let's start now. First, we will write the data in a CSV file. Let's execute this. As you know, I have opened my Python IDLE. The very first thing we have to do is, we have to import the CSV module. Then here I am defining the write function to write the data in my CSV file. After that, I am opening the file here. You can open the file using with statement also. If you are using with statement, then there is no need to close the file also. So let's suppose here I am taking the name of my file is items.csv. Since I have to write the data, so I am opening it in write mode. After that, you have to use the new line argument. अगर आप new line argument में empty string नहीं दोगे, तो आपका by default क्या है, वो next line में एक एक line blank insert करेगा. Why it is doing this? The video based on this concept I have already made. You can check the playlist of file handling also. Otherwise, I will provide the link of this concept in my description also. After that, you have to create a writer object. Let's suppose here I am writing swriter dot csv dot writer equals to csv dot writer. जो आपका writer function है, that is in the module of CSV. उसके writer function को कॉल करके हमने अपना writer object create कर लिया. Why there is a need to create the writer object? Because जो मेरे CSV files है, उसमें delimited characters होते हैं. उनको read करने के लिए, उनको convert करने के लिए CSV file जो understand कर सके, we need the writer object. After that, I am using the write row function. Write row function is used to write a single row. If I want to write the multiple rows, then for that we are having write rows function. अब सबसे पहला हम क्या करेंगे, item number जो आपके कॉलम के नेम्स हैं, वो राइट करा लेंगे. item name, then its quantity and then its price. These जो आपकी फर्स्ट हेडर रो है, वो हमने राइट करा दी. अब उसके बाद क्या करना है, मुझे यूजर से इनकी वैल्यूज इनपुट लेनी है. फॉर दैट आई एम राइटिंग द व्हाइल लूप और कंडीशन क्या लगा दी, ट्रू. क्या क्या एंटर कराएंगे यूजर से, नंबर, नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस. इनपुट आइटम नंबर equals to input item name, then user will enter the quantity and then at the end its price.
नाउ सी बेटा, जो आपकी इंटीजर वैल्यूज है, सपोज आइटम नंबर, क्वांटिटी, प्राइस, जो मेरी CSV फाइल्स है वो आपकी सारी वैल्यूज किस में लेता है बेटा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इवन अगर आप यहाँ से इंट फंक्शन लेकर भी इनपुट कराओगे तो भी वो आपका CSV फाइल में जो जितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली सारा मेरा किस फॉर्म में होता है? टेक्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इंट फंक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे डजंट मैटर, क्योंकि मुझे जब मैं डेटा को सर्च करूंगी तो वहां पर जो है मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग इंट फंक्शन हियर, आई विल शो यू द डिफरेंस ऑल्सो। अब उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने नेम, नंबर, क्वांटिटी एंड देन इट्स प्राइस। उसके बाद एक हम एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं। लेट्स सपोज आई हैव टेकन विद नेम रिकॉर्ड REC। उस REC वाले लिस्ट में मैंने क्या किया, जो मेरी यूजर 1 बाय 1 रिकॉर्ड एंटर करेगा वो मैंने उसको अपेंड करा दिया। अब जो आपकी REC बनेगी दैट विल बी योर नेस्टेड लिस्ट। उस नेस्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होगा दिस आइटम नंबर, नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस, वो एक लिस्ट होगी। देन कोमा, देन सेकेंड लिस्ट, इस तरीके से वो आपकी एक नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। नाउ आई विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर की whether want to enter more records or not. So if user will place either capital N or small n, तो then it will break, means वो while loop से बाहर आ जाएगा। अब जब वो while loop से बाहर आएगा मुझे क्या करना है? फाइल में डेटा को राइट कराना है। यहाँ राइटर फंक्शन में F भी आएगा बेटा, फाइल हैंडल, I forgot to write। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? फाइल में डेटा को राइट कराना है। सो फॉर दैट आई एम राइटिंग swriter डॉट राइट रो फंक्शन। उसके बाद मैंने कौन से लिस्ट को ऐड कराना है? REC, जिसमें आपका फाइनल डेटा है। आफ्टर दैट वी विल क्लोज द फाइल और आपका जो डेटा है वो फाइल में रिटर्न हो चुका है। इफ यू वांट यू कैन राइट इट हियर प्रिंट स्टेटमेंट ऑल्सो। ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे? राइट फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देखो हमने क्या किया, राइट फंक्शन डिफाइन किया। आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड द फाइल items.csv and we have opened that file in write mode. If the file with same name already exists, so then it will overwrite the contents of my previous file, otherwise it will create the new file. And in new line argument, if you are working on Macintosh operating system, so you can skip this argument, but for Windows we have to write this because otherwise it will insert the blank line after every record. After that we have created the reader object, then we have written the first row जो आपकी header row होगी. After that we have created an empty list, फिर यूजर से वैल्यूज इनपुट कराई हमने, फिर हमने वो सारे रोज को क्या कर दिया? फाइल में राइट कर दिया। देन वी हैव क्लोज द फाइल। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ। Import, just we have to write the CSV. Then item number 101, item name let's suppose laptop, quantity 15, price 56,000. More record, yes. Item number 102, item name keyboard, quantity let's suppose 45, price 250. More record, yes. Then item number 103, item name mouse, quantity let's suppose 15, price 200. More record, yes. Item number 104, item name let's suppose CPU, quantity 5, price let's suppose 1500. More record, yes. Item number 105, item name PC, quantity is 6, price let's suppose 20,000. Now we have entered the 5 records in the CSV file. More records? No. Data written in a CSV file successfully.
नाउ वी विल ओपन द पाथ जहां पर आपकी CSV फाइल जो है वो क्रिएट हुई है. तो दिस इज माई पाथ ऑफ दिस items. Let me just open this. Now see, as I told you कि फाइल में डेटा को राइट कराने के लिए we are having two functions, write row and write rows. अब हमने मल्टीपल रोज तो एंटर करा दी, बट हमने फंक्शन कौन सा यूज किया यहाँ पर, राइट रो. बट अगर मुझे मल्टीपल रोज एंटर करानी है, so for that we have to write the function write rows. अदरवाइज क्या होगा बेटा, ये आपका एक ही रो में सारा का सारा डेटा एंटर हो जाएगा, बट हमें ये नहीं करना है. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस विथ राइट रोज फंक्शन. अगर आप राइट रो फंक्शन लोगे तो उसमें आपको विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप जो है राइट कराना पड़ेगा. सो आई हैव चेंज इट नाउ टू राइट रोज. नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस. Item number 101, item name laptop, quantity 15, price 56,000, more record yes, item number 102, item name mouse, quantity 15, price 250, more record yes, 103, item name keyboard, quantity let's suppose 14, price 300, more record no. ठीक है, अब हमारा डेटा फाइल में सक्सेसफुली राइट हो चुका है. Let's open the file now. तो as you can see कि अब मेरा जो डेटा है वो डिफरेंट रोज में आपका आ चुका है. ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं फाइल को. अब हम क्या करेंगे, फाइल में से डेटा को रीड करेंगे. राइट तो हो गया हमारा डेटा. नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल रीड द डेटा फ्रॉम द. आई होप आपको राइट रो राइट रोज फंक्शन में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा. अगर आपने राइट रो फंक्शन यूज करना है, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज द फॉर लूप और वन बाय वन रिकॉर्ड को हम एंटर कराएंगे. नाउ वी आर क्रिएटिंग द डिफाइनिंग द रीड फंक्शन. उसमें हमने क्या किया, फाइल को रीड करेंगे बट इन रीड मोड. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. उसके बाद हम रीडर फंक्शन को कॉल करेंगे. ये आपका एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा बेटा. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर आई इन एस रीडर. ये सारे रिकॉर्ड्स वन बाय वन रीड करके आपको क्या करा देगा, डिस्प्ले. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. आई एम कॉलिंग द राइट फंक्शन अगेन. ठीक है, बिकॉज मुझे फाइल में डेटा जो है दोबारा से राइट कराना है. I am writing it here, print reading data from a CSV file. Now let's execute this. Item number 101. Let me just quickly enter the records. Price 200, more record yes, item number 103. Item name keyboard, quantity 18, price 350, more record yes, item number 104, item name PC, quantity 6, price 35,000, more record yes, 105, UPS, quantity 4, price 10,000. ठीक है, अब इसने क्या किया, डेटा राइट कर दिया. अब इसने मेरा सारा का सारा जो है डेटा फाइल में से रीड भी कर लिया. तो एज यू कैन सी इसने जो भी रीड करा वो मेरा किसकी फॉर्म में करा बेटा, स्ट्रिंग की फॉर्म में. और अगर आप मेरा राइट फंक्शन देखो तो मैंने जो डेटा राइट कराया है ये इंटीजर में कराया है, बट CSV फाइल में आपका जितना भी डेटा राइट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. तो एज यू कैन सी अगर वो सिंगल कोट्स में आ रहा है दैट मीन्स वो आपका किसकी फॉर्म में है बेटा, स्ट्रिंग के फॉर्म में. नाउ लेट्स डिफाइन द सर्च फंक्शन. नाउ आफ्टर रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नाउ कि व्हाट इज आवर नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज टू बी डन. नाउ वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर आइटम यूजिंग आइटम कोड. दैट मीन्स यूजर विल एंटर द आइटम कोड, उसके करस्पॉन्डिंग वी हैव टू डिस्प्ले द कंप्लीट
record. Now as you can see, I have opened my Python ideally. Now here we have to define the search function. So here I am writing define search, and to search the record we have to read the file in a read mode. So this will be same. What changes we have to do? Here I am writing searching data. Instead of reading, I am writing searching data from a CSV file, and we have to open the file in the read mode. उसके बाद हम रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. फिर हमने क्या लिखा? फॉर आई इन एस रीडर. अब वो एक एक रिकॉर्ड को सर्च करेगा. अब यहाँ पर मेरी कंडीशन अप्लाई होगी. जब मैं रिकॉर्ड रीड कर रही हूँ, मुझे क्या करना है? पर्टिकुलर आइटम कोड का रिकॉर्ड रिट्रीव करना है. सो लेट्स से आई एम टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर. एंटर आइटम नंबर टू बी सर्च. जो आइटम नंबर यूजर ने सर्च करना है वो लिखेंगे. अब एक चीज देखो बेटा, आइटम नंबर तो मैंने इसमें इंटीजर में एंटर कराया था, बट अभी मैंने आपको बताया मेरा सारा का सारा डेटा वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्ट्रिंग की फॉर्म में. तो अगर आप इसको इंटीजर की फॉर्म में लोगे तो वो इसको कन्वर्ट करके आपको प्रॉपर आंसर शो नहीं करेगा. ठीक है, तो आपको इसको अगर हम ग्रेटर देन या लेस देन करेंगे तो हम उसके लिए फर्दर इन फंक्शन लगाकर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो हियर नाउ आई एम राइटिंग इफ आइटम नंबर किस इंडेक्स पर है बेटा? 0, आई ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू s. अगर वो उसके इक्वल है तो आई एम प्रिंटिंग द रिकॉर्ड विच इज इन द वेरिएबल i. Here I have commented the write function because data is already written in the file, so there is no need to write the data again. I have just called the search function now. Let me execute this. As you can see, it is reading the data from a file correctly, and now it is searching the data from a file. Enter item number to be searched. Let's suppose I am entering 102. So as you can see, it is showing me the record of 102. If you want, we can search for another record also. Let's suppose this time I am entering 105. तो अब ये मुझे 105 का रिकॉर्ड सर्च करके डिस्प्ले कर रहा है. अब एक काम करते हैं, एक रिकॉर्ड ऐसे एंटर करते हैं जो इसमें है ही नहीं. एंटर आइटम नंबर टू बी सर्च. लेट्स सपोज 110. तो ये मुझे कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है ना? So let's do the little modification in the code. What we will do, here I am taking a variable found and initializing it to 0. उसके बाद मैंने found की वैल्यू क्या कर दी? 1 और ब्रेक लगा देते हैं. अब देखो found की वैल्यू जो है वो 0 तभी होगी जब उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा. अगर रिकॉर्ड उसको मिल जाएगा तो found की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो here I am printing the message, sorry, no record found. Now let's execute this. Now here I am writing record number 110. So it is showing me the message no record found. Let's just quickly revise what we have done. First हमने राइट करा था डेटा, फिर रीड करा था, और सर्च के टाइम पर हमने यूजर से आइटम नंबर एंटर करा करके उसको हमने उससे कंपेयर किया था. अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपने पैरामीटर पास करना है तो ये वाली लाइन हम शिफ्ट कर देंगे नीचे जब हमने फंक्शन को कॉल किया. यहाँ पर ये लाइन मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी. एंटर आइटम नंबर टू बी सर्च, और ये आर्ग्यूमेंट यानी सर्च फंक्शन में पास कर दिया. यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, फिर वो इससे कंपेयर करेगा. आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट ले सकते हो. लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ. Enter item number to be searched. Let's suppose 103. So it is showing me the result or record of 103. आपने बस क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पर यूजर से एंटर करा लोगे, वो that will be stored in the variable s, और वो s as a parameter as an argument हम पास करेंगे. That will be received by the function here, और फिर हम उसको compare करेंगे. I hope these concepts or this question is clear to you now. If you are having any doubt,
you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.